Trying to conceive but unsuccessful? Have been advised IVF or IUI? Want a healthy and intelligent baby? Join us to fulfill your dream of becoming parents. A free expert guidance program on holistic IVF and IUI, scientific and spiritual approach, golden steps for successful IVF and IUI, daily online live sessions by expert medical doctors and spiritual teachers on decoding journey of IVF, tips for successful IVF, stress management, emotional well-being, fertility boosting diet, exercise and pranayam, counseling, meditation, sleep management, art therapy, music therapy, instrumental music meditation, value stories, Gita Gyan and scriptures, Ayurvedic and naturopathy detoxification, Garbhadhan. Starting from 1st November, meet us virtually from Monday to Saturday between 8 to 9 p.m. and Sunday between 11 a.m. to 12 p.m. Live on Zoom and YouTube channel Holistic IVF. Zoom meeting ID 919-519-84746. Password Happiness. For more details, call us on 9158 927 937 or 98206 16509 or 9833 801 570. You can mail us on holisticidf@gmail.com. Visit us on www.divinegarbhasanskar.in. Subscribe to our YouTube channel, Holistic IVF. Organizers, Medical Wing Brahmakumaris, Divine Sanskar Research Foundation.
Om Shanti. Warm welcome to all of you in our today's session, Holistic IVF and IUI, a scientific and spiritual approach में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन टॉपिक है Tips for Development of Good Embryo, and we have a speaker, PK Dr. Sunita Lothia ma'am, IVF consultant and Raj Yoga practitioner. Before we are going to start our session, I would like to introduce Dr. Sunita ma'am. She is MBBS, DGO, DNP, DFP, PGDHN, DPH Fellow in Infertility. She is practicing obstetric and gynecology and with a special interest in infertility at Haveri since 2000. She did her UG at Miraj Medical College and PG at JNMC Belgaum. Now she is running a 60-bedded hospital and IVF center at Haveri. She is a member of medical wing of Brahma Kumaris since 2009 and regularly teaching meditation, especially to patients since 8 years. She is conducting various programs for awareness on Garbha Sanskar, de-addiction, cancer, stress management, and infertility in association with BKs and Rotary Club. So, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सुनीता मैम का मैं आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू मैम, मोस्ट वेलकम। हेलो हेलो, यस एम आई मैम, ऑडिबल? एम आई ऑडिबल है? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रहा है जी। थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन वैष्णवी मैम। शैल आई शेयर द स्क्रीन? यस मैम, आप को होस्ट है, आप जरूर शेयर कर सकते हैं। सिलेक्ट यस मैम, शेयर हो रहा है स्क्रीन। दिख रहा है? जी जी। हेलो हेलो हेलो। यस मैम, आवाज भी आ रहा है और स्क्रीन भी दिख रहा है जी। गुड इवनिंग, ओम शांति। सबसे पहले मैं बाबा के बच्चों को आज के सत्र में सबका स्वागत करती हूँ। आई वांट टू सी माय सेल्फ, मुझे मेरा देखना है। आज के इस प्रोग्राम में मैं सब बाबा के बच्चों का दिल से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है टिप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो मतलब भ्रूण कैसे बनता है? एम्ब्रियो बनता है औरत का स्त्री बीज और शुक्राणु स्पर्म दोनों का मिलन होके एम्ब्रियो बनता है। तो हम आज के सत्र में देखेंगे कि कौन सी चीजें जिसकी वजह से स्त्री बीज हम लोग अच्छा बना सकते हैं और शुक्राणु की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। सो बोथ ऑफ देम विल अफेक्ट ऑन अल्टीमेटली फॉर द एम्ब्रियो। मैं ये जितना सिंपल बना सकती हूँ उतना बनाने की कोशिश करूंगी हमारे पेशेंट लोगों के लिए, सो दैट इट विल बी प्रैक्टिकली यूजफुल टू यू। ठीक है, तो शॉर्ट में हम देखेंगे जस्ट कि पहले आईवीएफ कैसा होता है। आपको तो सभी पता है अभी कि आईवीएफ कैसा होता है। इन शॉर्ट आई विल जस्ट टेल यू कि इनिशियली जैसे इंजेक्शन दिए जाते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं लेडी को ज्यादा एग बनने के लिए। फिर से नंबर 2 में आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक पिकअप किया जाता है, फिर साइमल्टेनियसली स्पर्म प्रिपरेशन होता है। नंबर 4 में आप देख रहे हैं डिश में उनको फर्टिलाइज किया जाता है और बाद में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होते हैं और लास्ट में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में फॉर द इम्प्लांटेशन। ओके, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है आईवीएफ में। तो पहले कलेक्शन ऑफ oocytes होता है अंडर एनेस्थेसिया, शॉर्ट जीए दिया जाता है जिस और अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस थ्रू वजाइना स्त्री बीज
जैसे एग कलेक्ट किया जाता है और बाद में आगे की फर्दर प्रोसेस अभी आपने देखा है। तो जैसे एम्ब्रियो बन गया, बाद में डिश में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना दिया जाता है। इन आफ्टर 24 आवर्स इट विल बी 2 PM स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, और डे 5 को ये ब्लास्टो बनता है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये इसके डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस है एम्ब्रियो के, ठीक है। तो और बाद में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एम्ब्रियोज और उसकी क्वालिटी के हिसाब से डे 3 भी ट्रांसफर कर सकते हैं, डे 5 ट्रांसफर करते हैं। डे 3 थर्ड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो जब 8 सेल का होता है तभी एम्ब्रियो लेडी के यूट्रस में डाला जाता है। और कभी कभी ज्यादा अगर एम्ब्रियो है तो उसको 5वें दिन तक ग्रो किया जाता है और बाद में उसको यूट्रस में डाला जाता है, उसको ब्लास्टोसिस ट्रांसफर बोलते हैं। तो अभी ये क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो, अभी हम लोग बात करें क्वालिटी। क्वालिटी कैसी हो सकती है एम्ब्रियो की? आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऊपर की पिक्चर है वो गुड क्वालिटी एम्ब्रियो, एक्सेलेंट एम्ब्रियो, जिसमें जो छोटे छोटे सेल्स है वो सभी एक साइज के हैं और उसमें कोई ग्रैनुलेशंस नहीं है। नीचे के पिक्चर में आप देख रहे हो उसके अंदर साइज छोटा बड़ा है और ग्रैनुलेशंस हम लोग बोलते हैं, तो जिसकी वजह से वो एम्ब्रियो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, उसमें फ्रेगमेंटेशंस है। तो अब ये क्यों होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन सी चीजों की वजह से क्वालिटी एम्ब्रियो की अफेक्ट होती है, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट जस्ट देख लेते हैं, बाद में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले एज ऑफ द फीमेल, लेडी की एज क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी डिटरमाइन करने का। अगर जितनी छोटी एज रहती है, एज कम रहती है, उतना क्वालिटी अच्छा होता है। जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे उसमें अनुप्लाडी और क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज होने के चांस ज्यादा होते हैं। हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे एक एक चीज पे। सेकंड फैक्टर है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे की वजह से सभी डायबिटीज, बीपी, दूसरे भी कोमॉर्बिडिटी साथ में आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। थर्ड फैक्टर पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। फिर अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोर क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो है तो रिपीट चांस होने का एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन वापस पोर क्वालिटी होने का चांस ज्यादा रहता है। साथ में फिर एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज अगर है, मदर को अगर डायबिटीज, बीपी, थायराइड, दूसरे भी कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है तो उसकी वजह से भी क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। फिर एएमएच लेवल, एएमएच मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल। ये लेवल अपने बॉडी में कितना एग है, कितना अंडे है, उसका लेवल दिखाता है। तो उस लेवल के हिसाब से भी हमारी क्वालिटी चेंज होती है। एंड देन हैबिट्स, जैसा एग का ये सब हुआ, बाद में स्पर्म क्वालिटी डिपेंड होती है कि हस्बैंड के कौन से हैबिट्स है। अगर वो स्मोकर है, अल्कोहलिक है, तो उसकी वजह से भी क्वालिटी एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म अफेक्ट होती है। तो हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले सबसे पहला फैक्टर था एज। तो एज में आप देख रहे हैं कि फीमेल का एज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा एज बढ़ता जाता है वैसा नंबर ऑफ एग्स कम होते जाते हैं, नंबर कम होते हैं और क्वालिटी भी कम कम होती जाती है। इन एनी लेडी द पीक ऑफ द फर्टिलिटी, हाईएस्ट पीक इज 25 years। 25 years इज द बेस्ट टाइम फॉर हर फॉर द कंसेप्शन। तो जैसा एज उनका बढ़ता जाता है 35, आफ्टर 35 एक कम हो जाता है, आफ्टर 40 इट विल सडनली डिक्रीज एंड दे विल बी नियर मेनोपॉज। 10 years बिफोर मेनोपॉज, जब आपको प्रैक्टिकली मेनोपॉज दिखता है उसके ऑलमोस्ट 12 years बिफोर एग एकदम कम हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं, और आपको प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेनोपॉज बाद में दिखता है। तो काफी टाइम हमको पूछते हैं कि अभी यू आर टेलिंग कि एमएच लेवल 0 है, एग कम है, लेकिन हमको तो मेनोपॉज नहीं आया है। 12 साल पहले आपको आपकी एग क्वालिटी एकदम एग कम हो जाएगा, नंबर ऑफ एग्स कम हो जाएगा, उसके बाद में आपको मेनोपॉज आएगा। सो एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं आपको इंसिस्ट करके इसलिए बोल रही हूँ कि आज अभी सवारी जो बहनें ये लेक्चर सुन रही है, आई वांट टू अपील देम, टेल देम कि स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी अर्ली। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बहुत बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं अभी ये करके देखते हैं, ये लेंगे वो लेंगे बाद में करेंगे, तो क्या होता है उसमें टाइम गवा जाता है। तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग चलता रहता है। तो जैसा एज बढ़ता है वैसा तुम्हारा
नंबर भी कम हो जाएगा और क्वालिटी भी कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से सक्सेस रेट डेफिनेटली फर्क पड़ता है। तो ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि नंबर, एग के नंबर जैसा हमारी एज बढ़ती जाती है, कम कम होता जाता है। आप यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ हाउ इट इज डिक्रीजिंग। एट द एज ऑफ 10 it is around 2 millions. You can see 1 million and how it is suddenly decreases. You can see from the graph. ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जब फीमेल चाइल्ड इंट्रायूट्राइन गर्भ में होता है और जब वो बर्थ लेता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज 7 मिलियंस। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 7 मिलियंस मतलब 70 lakhs एग्स एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, 70 lakhs। ठीक है, वो सेम कम होते 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 प्यूबर्टी, जब वो लड़की मैच्योर होती है, 14 वर्ष की होती है, पहली बार जब उसको मेंसेस हुआ, तो वो 70 lakhs का 4 lakhs हो जाता है। कैन यू इमेजिन, इट डिक्रीजेस सो ड्रास्टिकली, इट बिकम्स 4 lakhs। एंड और अब any female in her lifetime, total lifetime, she ovulates 400 to 500 oocytes only is ovulated। वो 4 लाख में से खाली 400 और 500 एग यूज होते हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये स्लाइड को विचार करने जैसी बात है। इसमें आपको दिख रहा है कि कितने जल्दी एग्स हमारे कम होते जाते हैं, और जितना एग का नंबर कम हो जाता है उतना क्वालिटी डेफिनेटली पुअर होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो के लिए एग, एज ऑफ द मदर है। तो ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जैसा एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि एज लेडी की जैसे एज बढ़ती जा रही है, वैसा वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फॉलिकल्स है, वो नंबर ऑफ फॉलिकल्स कम 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 हो रहे हैं। 20 एट द एज ऑफ 20 यू कैन सी द फॉलिकल्स 10⁵ है, वैसे ही एट द एज ऑफ 40 इट बिकम्स 10⁵, इट बिकम्स सो लेस। आप देख रहे हो कर्व कैसा नीचे जा रहा है, इतना ड्रास्टिकली कम होता है। आफ्टर 30 कम होना स्टार्ट होता है, एंड आफ्टर 30 कम 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 होता है। आफ्टर 35 इट ड्रास्टिकली डिक्रीजेस। सो 30 to 35 एज, हमारी मोस्ट ऑफ द बहनें 30-35 एज में रहते हैं जिनको कंसेप्शन का प्रॉब्लम आता है और कंसेप्शन की इच्छा रहती है। जैसे ही एक एक साल वो लोग टाइम उसमें वेस्ट करते हैं, उसे उनके नंबर ऑफ एग्स ड्रास्टिकली कम होते हैं, उनकी क्वालिटी उतनी ही पुअर होती है और रिजल्ट भी उतना कम आता है। आप ये स्लाइड में देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे एज है, एज देखो, और वाई एक्सिस पे एएमएच लेवल है। एएमएच लेवल दिखाता है कि कितने एग्स है लेडी के शरीर में, कितने एग्स है। ओम शांति। डॉक्टर सुनीता, आपका है ना पीपीटी फर्स्ट पेज पे ही है, वो पीपीटी चेंज नहीं हो रहा है। पीपीटी आप को चेंज करना है। आई एम चेंजिंग द पीपीटी। हाँ, लेकिन यू आर नॉट एबल टू सी। नहीं, वो फर्स्ट पेज पे ही है। आप अगेन अगेन आई विल शेयर स्क्रीन। 1 minute, आई विल क्लोज। 1 minute। पहले शेयर स्क्रीन के बाहर स्टॉप शेयर स्क्रीन ऊपर है। हाँ, here शेयर इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। नहीं रे, शेयर कर। अभी दिख रहा है? यस, नाउ। हाँ, पर अच्छा। ये आगे के पेज पे आया है। आपको जो प्रीवियस आपने जो चेंजेस किए ना वो नहीं एक मिनट स्टॉप शेयर। आप अभी दिख रहा है? हाँ जी, अभी आप चेंज करिए स्लाइड। हाँ देखो। ओके, आपका लोड हो रहा है, साइड में लोड हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू। 1 मिनट, वापस में इधर बंद कर। ओके, हाँ अभी दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है, अभी चेंजेस दिख रहे हैं। चेंज होते हुए दिख रहे हैं? हाँ जी। 1 मिनट। स्क्रीन आपके एरो
मुझे हेलो, हाँ जी, दिख रही है अभी? स्क्रीन चेंजिंग भी दिख रही है? हाँ दिख रही है। और आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो शॉर्ट शॉर्ट स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ, आप उस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको जो स्क्रीन दिखाना है वो दिखेगा। एरो से आपको जस्ट माउस से क्लिक करना है उसको। मुझे नहीं दिख रहा है कुछ लेफ्ट साइड में। आपके आई राइट हैंड हैव साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड योर। नहीं नहीं, मैंने अभी फुल स्क्रीन किया है। ओके। आप तो अच्छा, आपको फुल स्क्रीन नहीं है? नहीं, मुझे आपके स्लाइड्स भी दिख रहे हैं साइड में, और ये भी दिख रहा है। एक मिनट ठहर। चेंज तो करो, मैं बात करूँ टॉपिक पे। तो फुल स्क्रीन कर रहा है। दिख रहा है ना, बोलो। अच्छा, अभी दिख रहा है आपको स्लाइड्स? हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये सबसे अभी तक हमने डिस्कस किए थे कि कौन से फैक्टर्स क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज, ओबेसिटी और पीसीओडी। पहली हिस्ट्री अगर है कि पुअर क्वालिटी, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है क्या, एएमएच लेवल, हैबिट्स, हस्बैंड केयर, क्वालिटी, ये मैंने आपको डिस्कस किया। आई जस्ट वांट टू शो यू द स्लाइड्स जो मिस हो गए हैं। जो एज कैसी अफेक्ट होती है फीमेल की, इट इज अ नेगेटिव प्रेडिक्टर फॉर द फर्टिलिटी। और ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ काउंट कैसे एज जैसे बढ़ती जाती है। एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हो कि एज है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ एग्स है, वो कम होते जाते हैं। ये स्लाइड में आप देख रहे हो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ 70 लैक्स एग्स रहते, 7 मिलियंस, वो जो प्यूबर्टी के ऊपर 4 लैक्स हो जाते हैं और बाद में कम कम होते जाते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि नहीं चेंज हो रहा है आपका स्लाइड। आपका है ना आईवीएफ सक्सेस रेट्स फॉर वुमेन डूइंग देयर फर्स्ट आईवीएफ साइकिल पे वही ही दिख रहा स्क्रीन है, है। वही दिख रहा है। नहीं, आप मुझे है ना व्हाट्सएप करोगे, मैं डाउनलोड करके मैं शेयर कर देती हूँ, एक अगर मिनट, पॉसिबल। तो क्या मैं आप चाहते तो भी सुनने होते आप नहीं है। ये बंद कर, इसको बंद करो, दोनों खुले हैं इसलिए नहीं दिख रहा है। बाहर है, पूरा बाहर है, पूरी शेयर मत, पूरा बाहर है। हेलो, हाँ, ये ओवरवेट का स्क्रीन दिख रहा है। अभी चेंज हो हाँ रहा है स्लाइड? हाँ जी, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अभी दिख हो रहा रहा है। है? हाँ जी, हो रहा है। ठीक है। हाँ हाँ। तो हम यहाँ पे थे कि जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे नंबर ऑफ एग्स कम होते जाते हैं। एएमएच लेवल, ये आप स्लाइड में देख रहे हो कि जैसे एज बढ़ रही है वैसे एएमएच लेवल कम कम होती जा रही है। एट दी जैसे 35 एज में एएमएच लेवल सपोज 2 है, वही एट द एज ऑफ 40 इट बिकम्स 1। ये ड्रास्टिकली डिक्रीजेस, ग्राफ एकदम नीचे की तरफ आ रहा है। और ये स्लाइड आप दिख रही है स्लाइड आपको? हेलो, हाँ हेलो। दिख रही है, हाँ दिख हाँ, रही है। ये स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि जैसे अगर एज लेस देन 35 है तो उनका सपोज बर्थ लाइव बर्थ रेट का परसेंटेज 55% सक्सेस रेट, वही अगर 35 to 37 ओनली 2 साल
खाली 2 साल ज्यादा होने की वजह से सक्सेस रेट 55 से 40 हो गया। वही 38 to 40 अगर एज है तो उनका सक्सेस रेट 40 से सीधा 26, और 2 साल बाद में 14% सक्सेस रेट कम हो गया। वही एज अगर 40 है तो सक्सेस रेट बिकम्स 8%। सो यू जस्ट सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, कि जैसा एज बढ़ता जा रहा है वैसा सक्सेस रेट ड्रास्टिकली कम हो रहा है। फ्रॉम 35 to 40, 5 साल में सक्सेस रेट 55 से 8% आ गया। सो एज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस थिंग शुड बी नोटेड डाउन। फिर ओवरवेट, अगर मदर का एज ज्यादा है, ओवरवेट है, तो उसके साथ में एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज होने का चांस भी ज्यादा रहता है, और उसकी वजह से उसमें पीसीओडी भी चांस ज्यादा है, तो जिसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्बेंस होएंगे और क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो विल अफेक्ट डेफिनेटली। सो वेट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द तुम्हारा कम सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द क्वालिटी। फिर हम थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे पीसीओडी। तो पीसीओडी मतलब क्या रहता है? इट इज अ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर अमेनोरिया, हिर्सुटिज्म और ओबेसिटी, मतलब लेडी को लॉन्ग पीरियड ऑफ अमेनोरिया रहता है, मतलब पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं। इट मे बी 2 months, आफ्टर 2 months, 3 months, 5 months, कोई कोई लोग अप टू 6 months, अप टू 1 year भी हो सकता है। इसमें अमेनोरिया रहता है और उनके शरीर पे बाल ज्यादा रहते हैं, हिर्सुटिज्म हम जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसमें एंड्रोजन ज्यादा रहता है, और दे आर मूव टुवर्ड्स ओबेसिटी। इसमें 2 तरह के वेट रहते हैं, एक थिन पीसीओडी और दूसरा ओबेस पीसीओडी। तो इनमें पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज मतलब ज्यादा ओवरी में ज्यादा फॉलिकल्स रहते हैं, एंड क्वालिटी साइमल्टेनियसली आल्सो वेरी पुअर। तो एक्सेस एंड्रोजन की वजह से क्वालिटी हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से उन लोगों को पीरियड नहीं हो पाता और ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती। तो ये इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि ओवरी में मल्टीपल फॉलिकल्स है, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम होता है, और उसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। अगर मदर को अगर डायबिटीज है साइमल्टेनियसली, अगर इफ शी इज हैविंग डायबिटीज फ्रॉम द बिगिनिंग, हम जिसको ओवर डायबिटीज बोलते हैं, तो ये इस फैक्टर की वजह से भी उसको एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छा नहीं होने का चांस रहता है। एसोसिएटेड फैक्टर्स, मदर को अगर डायबिटीज है, उसको ब्लड प्रेशर है, तो जिसकी वजह से क्वालिटी फर्क पड़ेगी। अगर उनको थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर जैसे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म में जैसे उनका फफी फेस रहेगा, वाइटर थायराइड रीजन में इनलार्ज ग्लैंड रहेगी, वेट गेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म अगर है तो टीएसएच लेवल जैसे हाई दिखाएगा, उसके हिसाब से डॉक्टर आपके टैबलेट स्टार्ट करेंगे। अगर उनको हाइपरथायराइडिज्म, कोई कोई लोग को हाइपरथायराइडिज्म रहता है, जिसकी वजह से उनके वेट लॉस, डायरिया, रैपिड हार्ट बीट वगैरह रहेंगे, और इन सब लोगों की इस चीजों की वजह से भी क्वालिटी डेफिनेटली फर्क पड़ती है। थायराइड लेवल शुड बी कंट्रोल्ड, इट शुड बी नॉर्मल रेंज ड्यूरिंग कंसेप्शन, बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो। अगर थायराइड लेवल कम ज्यादा है तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है, और आफ्टर प्रेगनेंसी दे हैव अदर प्रॉब्लम्स लाइक चांसेस ऑफ अबॉर्शन आल्सो मोर, एंड मोस्ट लाइकली क्रिटिनिज्म हम बोलते हैं, जिसके अगर मदर में हाइपोथायराइडिज्म है तो बच्चा मंदबुद्धि होने का चांस ज्यादा रहता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थायराइड उसकी नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले आपको डिस्कस किया, ओबेसिटी मोटापा की वजह से साथ में दूसरे भी बीमारियां वो लेके आएगा। ओबेसिटी के साथ में हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और लिपिड ज्यादा रहेगा, डायबिटीज रहेगा, तो उनको बाकी की प्रॉब्लम्स भी साथ में लेके आ जाएगा। जैसे पीसीओडी के क्या सिम्टम्स रहते हैं नॉर्मली, जैसा कि उन लोगों में हेयर लॉस रहेगा, हिर्सुटिज्म मतलब हेयर ज्यादा रहेंगे बॉडी पे, पीरियड्स के टाइम पेन भी रह सकता है, ओवरवेट रहेंगे, एक्ने रहेंगे, फेस के ऊपर पिंपल्स रहेंगे, इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, इनफर्टिलिटी रहेंगे, और टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड्रोजन लेवल ज्यादा रहेगा। आजकल हम लोग एडोलेसेंट में ये प्रॉब्लम ज्यादा देख रहे हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी इज मोर कॉमन नाउ। सो ये एडोलेसेंट जो लड़कियां मैच्योरिटी की एज अराउंड 15 to 20 ईयर्स की एज ग्रुप की लड़कियां हैं, आजकल वो ओवरवेट दिखाई देती है, मोटी, उनका वेट तो हाई साइड में रहता है, जिसकी वजह से उनको पीसीओडी के प्रॉब्लम्स होने के चांस ज्यादा रहते। तो वेट शुड बी मॉनिटर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। ये स्लाइड में आप देख रहे हो कि ओवरी में मल्टीपल फॉलिकल्स है। बाद में अगर मेल्स को जैसे हैबिट्स है स्मोकिंग की, निकोटीन की वजह से स्पर्म की क्वालिटी
और मोटिलिटी दोनों अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्वालिटी हमारी एम्ब्रियो की चेंज हो जाएगी। अगर उसको अल्कोहल लेने की आदत है तो वो भी एक फैक्टर है क्वालिटी में चेंज करने के लिए। अगर वो तंबाकू खा रहे हैं, टोबैको चूइंग है, तो इट विल आल्सो अफेक्ट बोथ द काउंट एंड मोटिलिटी। सी खाली काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, काउंट भी अच्छा है, लेकिन अगर उनकी मोटिलिटी नहीं है तो उसकी वजह से भी हमारा फर्क पड़ेगा। अबनॉर्मल्स चांसेस ऑफ अबनॉर्मल स्पॉन्स फॉर्मेशन आर मोर। अगर हैबिट है कोई में जेंट्स को कि जैसे टोबैको, अल्कोहल, जो भी कोई, जिसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम क्रोनिक्स होते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते होते ये सब चेंजेस होते हैं। जब हम मेल को ये कम टोबैको छुड़ाते हैं या अल्कोहल छुड़ाते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो फ्रॉम द ट्रीटमेंट टू चेंज द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म्स इट विल टेक एटलीस्ट 3 months। 3 महीने का ट्रीटमेंट मिनिमम जरूरी है। तो ये सब चीज फैक्टर्स हमको कंसीडर करना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे कि अभी हमको अच्छा एम्ब्रियो बनाना है, तो कैसा बनाएंगे हम लोग अच्छा एम्ब्रियो। तो सबसे पहला, डॉक्टर तो अभी जैसे एम्ब्रियो स्पर्म क्वालिटी हो गया, एग क्वालिटी हो गया, लेबोरेटरी कंडीशंस वो जो अच्छा करना है वो करेंगे, लेकिन हम हमारे लेवल पे एज अ पेशेंट हमको अच्छा एम्ब्रियो होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे लेवल हम लोग जैसे अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट शुड बी देयर। हमारा शरीर और हमारा मन, आत्मा सब एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। हमको अटेंशन देना है कि हमारे थॉट्स क्या है, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर। क्योंकि अगर हमारे थॉट्स सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो फिर उसकी वजह से क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ेगा, हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको अटेंशन देना है हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर। हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। तो हर चीज को हमको अवेयरनेस रहना है, हमको देखना है, हमको हमारी एनर्जी, वी हैव टू रेज योर एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना है, जिसकी वजह से हमको सब एनर्जी लेवल पे चक्रास के ऊपर बैलेंसिंग का काम करना है। हमारे नेगेटिव इमोशनल ब्लॉकेजेस जो भी है हमको निकालना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमको हमारे सुप्रीम सोल में फेथ होना चाहिए कि हमारा सब अच्छा होएगा ही, जिसकी वजह से हमारे में पॉजिटिव हार्मोन्स सिक्रेट होंगे, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस नेचुरल हो जाएगा। और हमको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, भगवान को थैंक्स, हमको जो भी मिला है हर चीज के लिए थैंक्स। तो ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमारे कैसे हार्मोन लेवल बॉडी में कैसे नॉर्मली चलते हैं। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट। इसको हम लोग हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस बोलते हैं। ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी, फिर ओवरी, यूट्रस। एक हार्मोन दूसरे पे एक्ट करता है और दूसरा तीसरे पे करके अल्टीमेटली एक साइकिल, इट विल वर्क इन हार्मोनी नॉर्मली। इफ मदर इज अंडर स्ट्रेस, उसको कोई भी चीज का स्ट्रेस है या नेगेटिव थिंकिंग है, तो जिसकी वजह से ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा तो जिसकी वजह से फिर हमारी एग की क्वालिटी अच्छा नहीं बन पाएगी। यू कैन सी फ्रॉम दिस वेरी बिजी स्लाइड कि इट इज सच अ माइन्यूट प्रोसेस। छोटे 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 हार्मोन्स कहाँ कहाँ एक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एग की क्वालिटी चेंज होता है। एक चीज दूसरे पे एक्ट करते, दूसरे तीसरे पे। अगर ये साइकिल में एक भी लेवल पर भी कहाँ भी ब्रेक हो गया तो दूसरा अफेक्ट होता है। जैसे किसी का मोबाइल नंबर है, 10 नंबर में एक नंबर भी रॉन्ग होगा तो मोबाइल नंबर सही नहीं लगेगा। ऐसा ही इस स्लाइड में आप देख पा रहे, अगर हार्मोन लेवल पे एक जगह भी डिस्टर्बेंस रहेगा तो क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो, क्वालिटी ऑफ एग विल डेफिनेटली अफेक्ट। सेम थिंग यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारा न्यूट्रिशन भी ये सब चीज में बहुत अफेक्ट करता है। आप देख रहे हो स्लाइड के ऊपर, आप स्लाइड पे लिखी वाली चीज यू कैन नोट डाउन कि हमको क्या क्या करना चाहिए। हमारे खाने में वैलनट मतलब अखरोट, तिल, टोफू, सोयाबीन, सीड्स, बीन्स, व्हीट ग्रास, ऑर्गेनिक फूड्स, ये हमारे खाने में होना चाहिए। और हमारा खाना अल्कलाइन होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। उसके लिए जैसे कि नॉन सिट्रस फूड्स, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, स्प्राउट्स, सीरियल ग्रासेस जैसे व्हीट है, बार्ली है। तो और हमको खाना अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि सलाइवा अल्कलाइन होता है, ठीक है। और खाना खाते टाइम हमको पानी नहीं पीना चाहिए। डेयरी फूड्स और प्रोडक्ट जो भी रहते हो, ग्रेन से सब एसिडिक रहते, तो उनका नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए। तो खाने में हमारे इसेंशियल फैटी एसिड्स ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि कोल्ड प्रेस ऑयल, फ्लैक्स सीड,
फ्लैक्सीड मतलब अगसी बोलते हैं, और pumpkin seed oil, soya product, raw nuts, green leafy vegetables. You can see from the slide, note down from the slide, broccoli, cauliflower, ये सब हमारे खाने में इंक्लूड होना चाहिए. बेकरी प्रोडक्ट्स हमको नहीं खाना चाहिए. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करता है हमारी को, हमारा ब्लड क्लीन करता है, क्लॉटिंग कम करता है, ब्लड फ्लो ओवरी और यूट्रस को बढ़ाता है, जो हमको चाहिए. ओवरी को और यूट्रस को ब्लड फ्लो बढ़ाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है. एनके सेल्स में नेचुरल किलर सेल्स को कम करता है, हमारा और बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इफेक्ट के लिए जरूरी है. तो हमारे सप्ली डाइट्स के साथ में हमको दूसरे सप्लीमेंटेशन भी जरूरी है, जैसा ए बी सी के ई, जिंक, सेलेनियम, ये और अलगी स्पिरुलिना. आजकल स्पिरुलिना यू मस्ट हैव लिसन इन द मार्केट. स्पिरुलिना की टैबलेट्स अवेलेबल है जो जरूरी है. इट विल इंक्रीज योर इम्यून सिस्टम, इट विल मेक बूस्ट द इम्यून सिस्टम. विटामिन B6, कोएंजाइम Q10. डॉक्टर भी आपको अगर बिफोर IVF दे विल आल्सो गिव सप्लीमेंटेशन कंटेनिंग कोएंजाइम Q10, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन अच्छा होता है. पावर हाउस ऑफ ईच सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ ईच सेल. एंड फोलिक एसिड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कैल्शियम. दीज आर ऑल सप्लीमेंटेशन नेसेसरी. और जैसा ही मैंने आपको बताया कि अगर हैबिट से हस्बैंड को निकोटीन, टोबैको में निकोटीन रहता है, जिसकी वजह से क्वालिटी कम होती है. निकोटीन हमारे यूट्रस के फ्लूइड में 10 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. आजकल लड़कियों में भी थोड़ा टोबैको अल्कोहल का सेवन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उनमें यूट्रस में इसका लेवल ज्यादा हो जाता है, ओवरी में इसका लेवल ज्यादा होने की वजह से क्वालिटी डेफिनेटली फर्क पड़ेगी. हमको अननेसेसरी मेडिकेशंस अवॉइड करना है. दर्द की गोलियां, NSAID नहीं खाना है. जरूरी है तो ही हमको ये सभी दवाइयां लेना है. स्ट्रेस इज द इम्पोर्टेंट फर्टिलिटी किलर. मदर शुड बी रिलैक्स्ड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ दिस. ये जो सब प्रोसेस है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम का, जो भी पिकअप है, फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये सब टाइम पे मदर रिलैक्स रहनी चाहिए. अगर उसमें स्ट्रेस लेवल है तो स्ट्रेस लेवल की वजह से पर्टिकुलर हार्मोन्स, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल वगैरह सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन कम हो जाएगा. ये स्टडीज में प्रूव किया गया है बियॉन्ड डाउट कि अगर मदर अगर स्ट्रेस्ड है तो उसका प्रेगनेंसी रेट कम हो जाएगा. तो हम लोग इधर इसलिए है कि हमारा स्ट्रेस लेवल कैसे कम करना. डॉक्टर लोग फर्टिलिटी और आपका प्रेगनेंसी रेट कैसे बढ़ाएंगे वो सब करेंगे, लेकिन हम हमारे लेवल पे हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा कम करना वो देखना है. तो आज का हमारा ये प्रेजेंटेशन उसलिए कि हम हमारा स्ट्रेस लेवल भी कैसा कम कर सके उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए. तो हमारी हमको क्या करना चाहिए अभी, तो हमको हमारा वी शुड बी इन ट्यून विद द 5 एलिमेंट. जो 5 एलिमेंट है उसके साथ में हमारा ट्यूनिंग होना चाहिए. हमारा फूड हमको अच्छे करेक्ट तरीके से खाना चाहिए. अभी जैसे दीदी आपकी रिपीटेडली दूसरे लेक्चर्स में आपने सुना है, हमारा खाना जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसे पानी, वो आपने सुना है. ये सभी प्रोग्राम में जो हमारा चार्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर चार्ज करके खाना खाना और पानी पीना जैसा आपको समझाया गया है, वैसा आप फॉलो करेंगे तो इट विल अफेक्ट डेफिनेटली. नॉट ओनली चार्ज करके खाना बनाते टाइम भी स्थिति कैसी हो वो भी इम्पोर्टेंट है. इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ योर होम, बैलेंस द सर्कैडियन रिदम, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. और रेज हैप्पी हार्मोन्स इन द बॉडी. तो 5 एलिमेंट के साथ में हम कैसे ट्यून में रहेंगे, जैसे आकाश, पानी, धरती, स्पेस, फायर और एयर के साथ में कैसे रहेंगे. आकाश के साथ में कैसे रहेंगे, हमको फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, सलाद खाना है, स्मूथी पीना है, और बेयर वॉकिंग, फुट वॉकिंग ऑन द अर्थ. ऐसा ही नंगे पांव चलना है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ के साथ में कांटेक्ट हो जाएगा. वाटर एलिमेंट के लिए हमको जूस, काढ़ा, ये लिक्विड्स लेना है. स्पेस के लिए हमको मेडिटेशन करना है. राजयोग मेडिटेशन जिसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन हुआ है, वो हम अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हम ये 5 एलिमेंट के साथ में ट्यून हो जाएंगे. फास्टिंग. एयर के लिए हमको प्राणायाम करना है, योगा करना है, हमिंग साउंड करना है. फायर के लिए हमको एक्सरसाइज, योगा, सन बाथ, एटलीस्ट सुबह 10 मिनट हमको सन बाथ करना है, सन गेजिंग हो सके तो करना है. तो कौन सा राइट वे, व्हाट इज द राइट वे टू ईट फूड, जैसा वेजिटेरियन डाइट, लाइव फ्रेश फूड. खाने के टाइम हमको थैंक्स बोलना है भगवान को, हमको आज का खाना मिला, ग्रेटिट्यूड टू फूड.
we have to eat with mindfulness and in the remembrance of God. वो ईश्वर को याद करते हुए, थैंक्स कहते हुए हमको माइंडफुलनेस से खाना खाना है और हमको फास्ट फूड और पैकेज फूड नहीं खाना है. सो हमारे घर के वाइब्रेशंस हम कैसे बढ़ाएंगे? टाइडिंग, क्लीनलीनेस. जितना क्लीनलीनेस आप रखोगे, टाइडी रहोगे, उतना घर की वाइब्रेशन अच्छी रहेगी. हीलिंग वाइब्रेशनल म्यूजिक, बेल साउंड्स. पुराने जमाने में घर में भजन कीर्तन होता था, ये सब चाइम्स बजाते थे, उसकी वजह से घर का वाइब्रेशन बढ़ता है. अग्निहोत्र, आपने सुना होगा, अग्निहोत्र एक टाइप का होम करते हैं. यू कैन सर्च इन द इंटरनेट, जिसमें सुबह शाम ब्रह्म जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे होम किया जाता है. और गाय के गोबर के साथ में, गाय का शुद्ध घी और चावल के साथ में ये होम किया जाता है. यू कैन सर्च इन द नेट, यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. फिर हमको हमारा इंडोर पोल्यूशन कम करना है. ये हमारे नेचुरल सर्केडियल रिदम है, जैसा नेचुरल बॉडी क्लॉक हमारे आयुर्वेदिक के हिसाब से आप स्लाइड में देख पा रहे हैं. सुबह 4 बजे वात का प्रमाण, मेन डोमिनेटिंग फैक्टर है वात. वो टाइम पे कैसा है? हमको मेडिटेशन करना है, विजुअलाइज करना है. सुबह 6 बजे सूर्योदय हो गया, उसके बाद में 6 से 10 कफा का इफेक्ट रहता है. वो टाइम पे हमको एक्सरसाइज करना है, खाना लाइट खाना है, ब्रेकफास्ट खाना है. 6 से 8 बजे के आसपास हमारे बॉवेल इवैक्यूएशन होना चाहिए. हम लोगों को प्रिपरेशन करना है दिन के लिए, एनर्जी जमा करनी है. 10 से 2 बजे तक पित्त. तो वो टाइम पे हमको काम करना है, प्लानिंग करना है, एक्शन लेना है, काम करना है. हेवी मील 2 बजे के आसपास हमारी जीआईटी काम करना शुरू करते हैं, तभी हम लोग लंच करेंगे. वो टाइम पे मेटाबॉलिज्म ज्यादा रहेगा. वापस 2 से 6 बजे तक वापस वात का इफेक्ट रहता है, तभी मूवमेंट, कम्युनिकेशन, सोशलाइज हमारा लास्ट में 6 बजे लास्ट में. उसके बाद में 6 बजे के बाद में हमारा एक्टिविटीज धीरे धीरे स्लो डाउन होना चाहिए. वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द स्लीप, वी हैव टू गो विद इन, हमारे अंदर जाके देखना है, हमको मेडिटेशन करना है, अफर्मेशन करना है और बाबा की याद में सोना है. नाइट में सोने के बाद में, सोने से सुबह 4 बजे तक हमारा बॉडी का प्यूरिफिकेशन चलता है. तो ये सेम आयुर्वेदिक जो क्लॉक अभी बताई, उसके चाइनीज क्लॉक में है. इसमें ऑर्गन्स के हिसाब से कैसा काम करते हैं वो दिखाया गया है. आप देख सकते हैं 12 मिडनाइट से 3 बजे तक ग्वाल ब्लैडर और लीवर काम कर रहा है, मतलब हमारा बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो रहा है. इसलिए हमको 10 बजे तो एटलीस्ट सो जाना चाहिए. अगर तुम लेट सोओगे तो उतना कम टाइम मिलेगा ग्वाल ब्लैडर लीवर को प्यूरिफिकेशन के लिए. और 2 बजे के बाद में 4 बजे के आसपास लंग हमारा काम कर रहा है, इसलिए सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्राणायाम करो, ऐसा बोला जाता है. लंग, क्योंकि लंग तभी ब्लड सप्लाई लंग को ज्यादा रहता है, तो यू कैन डू प्राणायाम. सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हमारा लार्ज इंटेस्टाइन काम करता है, उसको ब्लड सप्लाई ज्यादा रहता है, इसलिए इवैक्यूएशन प्रोसेस वो सभी वो टाइम पे होता है. 8 बजे हमको ब्रेकफास्ट लेना, क्योंकि तभी स्टमक को ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है. और बाद में 10 बजे स्प्लीन को, 12 बजे बाद में हम लोग डे टाइम की हमारी जो एक्टिविटी करते हैं उसके हिसाब से स्प्लीन, हार्ट. 2 बजे स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो तभी हम लोग लंच लेते हैं. और इवनिंग में बाकी हमारे एक्टिविटीज है, ब्लैडर, किडनी के काम करते हैं. तो इट इज जस्ट इन शॉर्ट टर्म ब्रॉड व्यू ऑफ द चाइनीज क्लॉक. सो हमारी एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंगली रहे तो वी आर इन ट्यून विद द नेचर, तो हमारे बाकी काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं. तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? हमारा पॉजिटिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, हर चीज की तरफ हमारा अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए. वी हैव टू रिमेन स्ट्रॉन्ग. हमको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, हर चीज में थैंक्स. भगवान ने आज का मुझे दिन, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे, हर चीज के लिए थैंक्स. आज का दिन मुझे मिला, आज आई एम अलाइव, थैंक यू. थैंक्स फॉर द फूड, थैंक्स व्हाटएवर हैपेंस विद यू, थैंक्स. देयर इज समथिंग गुड. हर चीज में क्या पॉजिटिविटी, क्या अच्छा है वो हमको ढूंढना है. भगवान ने आज मुझे ये दिया है, क्यों दिया, उसमें क्या अच्छा है वो ढूंढना है. हर चीज में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, सो यू विल लाइक वॉट एवर यू आर डूइंग. ये अभी बच्चा, आप सब लोग इधर गैदर हुए कि बेबी के लिए, लेकिन ये एक चीज नहीं है, लाइफ में दूसरे भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो हमको ये लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है. ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हमको लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करनी है. ग्रेटिट्यूड की वजह से हमारे वाइब्रेशंस अबव 500 ज्यादा लेवल पे रहते हैं. लव एंड ग्रेटिट्यूड, इसका वाइब्रेशन लेवल हाईएस्ट है, जिसकी वजह से हमारे एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा. तो
वी हैव टू रीड पॉजिटिव थिंग्स इन द मॉर्निंग, जैसे कि अफर्मेशंस है, जो हमारा चार्ट दीदी ने दिया है हमको 10 एक्टिविटी जो पर डे करने का है, उसमें अफर्मेशंस है, बहुत अच्छे से बताया कि हमको क्या क्या अफर्मेशंस करना है, सुबह से लेकर शाम तक कौन से अफर्मेशंस करना है। अफर्मेशन राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टिमुलेशन से लेके स्टिमुलेशन के टाइम पे कौन से अफर्मेशन करना है, बाबा की शक्ति मुझ में आ रही है, मेरा अंडाशय सुदृढ़ हो रहा है, मेरे अच्छे क्वालिटी के एग बन रहे हैं, दिव्य शक्ति करने के लिए मेरा यूट्रस रेडी हो रहा है। जो अफर्मेशन दिए गए हैं वो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आ जाएगी। यू हैव टू बी विथ योरसेल्फ, वॉच योर वाइब्स आवरली, यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर थॉट्स, हम क्या सोच रहे हैं। अगर बीच में एक निगेटिव थॉट होता है, इमीडिएटली आपको उसको पॉजिटिविटी से रिप्लेस करना है। और हमारा ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45 के बीच में मेंटेन करना है। तो हम कैसे रिड्यूस करेंगे स्ट्रेस, हमको अच्छी किताबें पढ़नी है, थोड़ा वॉकिंग करना है, गुड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए नेसेसरी। फिर हमको अच्छे फ्रेंड्स के साथ में रहना है, अच्छा सुनना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, वेजिटेरियन सात्विक फूड खाना है। जो भी आप करें माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, ये जो आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, आपका डे का चार्ट जो है आप रेगुलरली, जैसे कि दीदी ने आपको बताया है, जो चार्ट करेंगे तो इसमें ये सब चीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आप जस्ट उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये सभी चीज मिल जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी, क्वालिटी स्लीप, सपोर्टिव रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ, बैलेंस न्यूट्रिशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। हमारा डाइट सात्विक, वेजिटेरियन, प्योर, फ्रेश होना चाहिए। बनाते टाइम की स्थिति, खाते टाइम की स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस, अगर मोटापा है, वेट ज्यादा है, तो हमको वेट लॉस पहले से ही करना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिफोर गोइंग फॉर आईवीएफ। इफ यू कैन रिड्यूस वेट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 5 kg भी वेट कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्वालिटी डेफिनेटली फर्क पड़ेगी। तो बीएमआई, वेट हम लोग नॉर्मली वी काउंट बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जो काउंट वो कैलकुलेट किया जाता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हमारा वेट, हमारा बीएमआई 25 के नीचे होना चाहिए। अगर हमारा बीएमआई 25 के ऊपर है तो हम ओवरवेट है, और 30 के ऊपर है तो ओबेसिटी है। तो हमको हेल्दी डाइट कैसा खाना चाहिए, विच इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रेश लाइव फूड। एक्सरसाइज भी हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूड होनी चाहिए, और हमको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम जैसे आपको पता है, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति और उज्जयी श्वास, जो डिफरेंट 7 नमूने के जो प्राणायाम्स है उनको हमको करना चाहिए। इसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और ये पॉजिटिविटी आ जाएगी, और इसकी वजह से हमारे बॉडी के हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएगा और हमारे एग की क्वालिटी भी अच्छी बन जाएगी, विच विल हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो हमको हैप्पी हार्मोन्स कैसे बढ़ाने का है, कौन से हैप्पी हार्मोन्स है हमारी बॉडी में, जैसे कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। डोपामाइन कैसे बढ़ेगा, वी हैव टू लिसन टू द म्यूजिक, मूवमेंट करना है, अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेना है। ऑक्सीटोसिन के लिए हमें क्या करना है, हमारे फैमिली फ्रेंड के साथ, फ्रेंड के साथ में रहना है, प्यार से हग करो, डांस करो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, एक में को अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स दो, सो जिसकी वजह से हमारे में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए हमको योगा करना है, नेचर के साथ में हमको टाइम बिताना है, सन बाथ लेना है, और अच्छा पॉजिटिव सोचना है। एंडोर्फिन्स के लिए हमारी बॉडी मूवमेंट होना जरूरी है, खुशी से लाफिंग क्लब, आजकल लाफिंग क्लब बहुत चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसकी वजह से एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। टू बी क्रिएटिव एंड डार्क चॉकलेट, ये सभी 4 हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने की हमको कोशिश करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वी हैव टू बी कनेक्टेड विद द गॉड। आजकल हम लोग बाहर ही हमारा अटेंशन इतना हो गया कि हम लोग अपने आप को भूल गए, हम अंदर झांकना ही भूल गए। तो ये सब चीज करते हुए, बाहर का काम करते हुए, हमको एक कनेक्शन हमारा ईश्वर के साथ में होना चाहिए, टू कनेक्ट विद द गॉड। तो अगर हम अंदर कनेक्टेड रहेंगे तो हमको टाइम टू टाइम पॉजिटिव इंट्यूशंस आते रहेंगे, हमको क्या करना है, दिशा मिलती रहेगी जिंदगी के। यू विल गेट इंट्यूशंस, व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ। इंट्यूशन, इन ट्यूटर, तुम्हारा अंदर का ट्यूटर, अंदर का टीचर तुमको बताएगा कि तुमको ये करना चाहिए, जिसकी वजह से काफी डिसीजन तुम लाइफ में सही ले सकते हो। तो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ यू हैव टू बी कनेक्टेड इन विद द गॉड। हर चीज में, सुबह से लेकर शाम तक, हर मूवमेंट में, हर क्षण में आप उनसे कनेक्टेड रहो। खाना खाते टाइम, खाना बनाते टाइम,
वर्क प्लेस में बात करते टाइम हर चीज में कंटिन्यूसली आप उनसे कनेक्टेड रहो। अगर हमारी हर एक्टिविटी में अगर परमात्मा शामिल है तो हमारा सफलता हमको मिली ही है। हमको अच्छा इंट्यूशन आएगा, जो अच्छा हमारे लिए अच्छा है वो हमको ऑटोमेटिकली सिग्नल मिल जाएगा। सो वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू गेट कनेक्टेड विद द गॉड। आजकल हम मोबाइल में कनेक्शन थोड़ा टाइम भी नहीं है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो उससे भी इम्पोर्टेंट है कि हम कंटिन्यूअसली हमारा कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा के साथ में रहे। वो हमको क्या बोलना चाहता है वो हम सुने, उसकी आवाज, अपने अंदर की आवाज सुने, तो हम काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो हम इधर इस धरती पे जो आत्मा के 7 गुण एक्सपीरियंस करने के लिए आए, जैसे कि पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी, जैसे कि शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ये आनंद एक्सपीरियंस करने के लिए, हम लोग सफर होने के लिए नहीं आए, हम ये सब अनुभव करने के लिए। तो वो अनुभव करने के लिए हमको अपने अंदर झांकना जरूरी है, उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना जरूरी है, जिसकी वजह से हम ये सब 7 गुणों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और जिसकी वजह से लाइफ, यू विल फील लाइफ ब्यूटीफुल। उसके साथ में आपको अपने को 8 पावर्स, जो आत्मा की पावर्स है, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, पावर टू पैकअप, जज करने की शक्ति, परखने की शक्ति, कोऑपरेट करने की शक्ति, विड्रॉ करने की शक्ति, ये सब शक्तियां हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जिसकी वजह से कौन सा टाइम क्या करना है हम लोग सीख जाएंगे। तो बच्चा एंड प्रेगनेंसी दैट इज ओके, बट अपनी लाइफ में आगे के लिए भी ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये अपना लाइफस्टाइल जिंदगी पर बना लेते हो तो इट विल हेल्प यू होल लाइफ। तो हमको क्या करना है, सुबह शाम कम से कम 1 घंटा परमात्मा से कनेक्ट होना है, ध्यान करना है, राजयोग मेडिटेशन करना है, जिसके अंदर, जिसकी वजह से अपने बॉडी में पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे। उससे कनेक्ट होना है। वो आपको क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहते हैं, हमारे बॉडी में सब हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, जो हमारी जिंदगी में खुशी, प्रेम चाहिए, आनंद सब मिल जाएगा। हमको अंदर से इंट्यूशंस आने लगेंगे, हमको कौन सी दिशा में जाना है। तो हमको सुबह और शाम एटलीस्ट दोनों टाइम परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना जरूरी है। तो ये जो हमारे चार्ट है, वो चार्ट में आपको अफर्मेशंस, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर अफर्मेशंस दिए गए हैं। मैं आप सब लोगों को अपील करूंगी कि वो अफर्मेशंस आप सीरियसली करो। और मेडिटेशन कमेंट्रीज दिए गए हैं, जैसे कि परमपिता परमात्मा की शक्ति आ रही है, मेरे में पॉजिटिविटी आ रही है, उसमें अलग अलग जो 7 गुण है उसके अलग अलग डिफरेंट कमेंट्रीज है, और हर सिस्टम पे, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वो कैसे अफेक्ट करती है, सभी कमेंट्रीज है। उसको अगर आप सिंसियरली करोगे तो उसमें आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, आपके अंदर गुड थॉट्स आने लगेंगे, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होने लगेगा। फूड एंड वाटर चार्ज की प्रोसीजर और करने की कमेंट्री सब दी गई है, आप उसको रेगुलरली फॉलो करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 8 पावर्स, ग्रेटिट्यूड, हमको हर चीज में थैंक्स बोलना है, भगवान को थैंक्स, हर चीज में थैंक्स। और अच्छी नींद हमको मिलना जरूरी है। अगर हम लोग एक्टिविटीज, चार्ट में दिए हुए एक्टिविटीज से सब करेंगे तो ऑलरेडी ये सब जो लेक्चर में बताया गया है वो सब ऑलरेडी आपकी लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे में पॉजिटिविटी, हैप्पी हार्मोन्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, और हमारा एम्ब्रियो, हमारा एग क्वालिटी अच्छा बनेगा। और एग क्वालिटी अच्छा बनेगा तो फिर हमारा एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छा बनना ही है, और सफलता हमारी निश्चित है। ठीक है, ओम शांति। Om Shanti. Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. आप सभी पार्टिसिपेंट्स अगर मैम से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है? शायद कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, लेकिन आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें समय दिया और सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। तो हाँ, किसी का मैसेज आया है? 2 दिन पहले पिकअप हुआ।
तो आपका क्या क्वेश्चन है? 2 दिन पहले पिकअप हुआ, अभी क्या फॉलो करूं? ठीक है, अभी आपका ऑलरेडी पिकअप हो गया तो आप अच्छे वाइब्रेशंस भेजो। अभी फर्टिलाइजेशन जैसा स्पर्म कलेक्ट होकर फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हुआ रहेगा, तो नाउ यू जस्ट प्रे, अच्छे वाइब्रेशंस भेजो कि मुझे मेरा एम्ब्रियो अच्छा बनेगा, नंबर ऑफ एग्स एम्ब्रियो अच्छे बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, उसमें क्वालिटी अच्छा होएगा, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। उसके लिए जो कमेंट्री आपके चार्ट में है, इसमें दी वाली कमेंट्री आप फॉलो करो, अच्छा वाइब्रेशंस भेजो, तो जस्ट नंबर ऑफ एम्ब्रियो ज्यादा बनेंगे और गुड क्वालिटी एम्ब्रियो एट द डे 3 और डे 5 बन जाएंगे, अच्छे रहेंगे। और साइमल्टेनियसली कमेंट्री अपने यूट्रस के लिए भी करो, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस उसको भेजो यूट्रस को कि दिव्य शक्ति के लिए मेरा यूट्रस रेडी है, बन रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है, उसको ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है, आई एम रेडी, यूट्रस इज रेडी टू फॉर द इम्प्लांटेशन। उसके जो कमेंट्रीज है वो फॉलो करो, और डाइट जैसा बताएगा वैसा फॉलो करो, और हमेशा पॉजिटिव सोचो, मेरा सक्सेस होएगा ही, मुझे पॉजिटिविटी, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा समझ के आप हर चीज में आप वैसा सोचो। पूरा दिन आपका माइंड उसमें ही लगना चाहिए कि इट विल बी पॉजिटिव और एवरीथिंग विल हैपन गुड ओनली। ओके, और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। थैंक यू मैम। और कुछ क्वेश्चन है? शायद नहीं है। थैंक यू सो मच मैम फॉर टुडेस सेशन। सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए कि कल संडे है, तो कल का सेशन मॉर्निंग सेशन रहेगा 11 से 12 बजे तक मॉर्निंग में। और दूसरा कि आई होप कि आप सभी पार्टिसिपेंट जो भी जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप में है, जो होलिस्टिक IVF एंड IUI का हमारा ग्रुप है उसमें आप जुड़े हुए हैं। और अभी एक गूगल फॉर्म बनाया गया है, तो आज हम वो फॉर्म अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। उस फॉर्म में थोड़ा सा आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है, और आप सभी अपना व्हाट्सएप नंबर ही उसमें डालिएगा, ताकि मैम ने आज जो गाइड किया कि एफर्मेशन और कैसे कैसे वीडियोस बने हैं, वाइब्रेशन देना है, ओरा बनाना है, तो ये सारी वीडियोस आपको आपके नंबर लेकर हम लोग आपके व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे 1 to 1। सो वो फॉर्म जरूर आज आप फिल करिएगा, सो वो आप सभी को एफर्मेशन मिलने के लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू। किसी ने क्वेश्चन उसमें लिखा है कि चार्ट कहाँ से मिलेगा? तो ये जो डेली एक्टिविटीज हैं, जो दीदियों के व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करने के बाद में आपको चार्ट मिल जाएगा, अफर्मेशंस, कमेंट्रीज, कैसे चार्ज करना, एवरीथिंग यू विल गेट वंस यू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। जी, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो अगर आप हमें मैसेज करें, या जैसे फ्लैश रोज का डिस्प्ले होता है उस नंबर से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरा कि आज हम गूगल फॉर्म शेयर करेंगे, आप वो एक बार भर दीजिए, सो आपको हम पर्सनली सब भेज देंगे। थैंक यू। अभी मेडिटेशन होगा, उसके बाद सेशन एंड किया जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। यह एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो संकल्प हम बार बार करते हैं हम उनका निर्माण करते हैं। What we think we become। भले ही आज हमारी परिस्थिति जो हो रही है, भले ही आज हमारे लाइफ में कोई विघ्न हो, कोई नेगेटिव परिस्थिति हो, हमें उन्हें ना सोच ना ही किसी से वर्णन कर हमें पॉजिटिव संकल्पों में स्थित होना है। जो हम अपने जीवन में चाहते हैं
जो सक्सेस चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ या हैप्पीनेस, जो भी हम चाहते हैं वह हमें बार बार सोचना है, उसे विजुअलाइज करना है। तो सवेरे उठते ही पहले 5 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जो संकल्प हम करेंगे उसका प्रभाव दिन भर रहेगा, उसी पॉजिटिविटी में हम पूरा दिन रहेंगे। तो सवेरे उठते ही पहले हम परमात्मा को दिल से मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग कहेंगे। इस जीवन के लिए हम उन्हें शुक्रिया कहेंगे और पहला संकल्प हम करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इस संकल्प में एक अद्भुत शक्ति है। हम परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान है। यह संकल्प करने से उनकी शक्तियां हमारे साथ कार्य करेंगी। हमें इस संकल्प के साथ फील करना है कि हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव शक्तियों का ऑरा तैयार हो चुका है और फील करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, परमात्मा की संतान। इसी संकल्प के साथ कनेक्टेड संकल्प हम करेंगे, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प को सोचने से विजुअलाइज करें कि जो भी हमारे जीवन में होगा अच्छा होगा। जो भी हम चाहते हैं दिल से स्वीकार करके विजुअलाइज करें। भले ही आज परिस्थिति अच्छी नहीं हो, नेगेटिव हो, हमें उन्हें न सोच यह पॉजिटिव संकल्प करना है कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। परमात्मा कहते हैं, अपने समस्याएं या कमजोरियों को वर्णन करने से या सोचने से वह समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए हमें हमारी कोई भी नेगेटिव परिस्थिति का संकल्प नहीं करना है, ना ही किसी से वर्णन करना है। सदैव यही सोचना है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसी संकल्प के साथ कनेक्टेड हम तीसरा संकल्प करेंगे, मैं बहुत धनवान हूँ। फील करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, धन से भरपूर हूँ। विजुअलाइज करेंगे, जो भी बैंक अकाउंट में हम फिगर चाहते हैं और उस फिगर को देखते हुए बहुत खुश होना है और फील करना है, मैं बहुत धनवान हूँ। मेरा घर, मेरे भंडारी भरपूर है। मैं बहुत धनवान हूँ। इसी संकल्प से कनेक्टेड हम चौथा संकल्प करेंगे, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, संपूर्ण निरोगी है। विजुअलाइज करेंगे, जो भी हम अपने हेल्थ रिलेटेड चाहते हैं, बीमारी मुक्त, संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण स्वस्थ शरीर। और पांचवा संकल्प हम करेंगे, मेरे सर्व रिलेशनशिप्स, संबंध बहुत अच्छे हैं। हम परिवार में सब यूनाइटेड है, बहुत खुश है, बहुत सुखी है। यह पांचों ही संकल्प एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सवेरे उठते ही
और सोने से पूर्व 5 मिनट यह 5 संकल्प करने से हमारा जीवन संपूर्ण हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से भरपूर होगा। हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं होगा। हम संपूर्ण सुखी बनेंगे। तो इस मेडिटेशन को हमें 5 मिनट कैसे करना है, चलिए। ओम शांति। तो ये जो भी कमेंट्री है ग्रुप में शेयर की जाएगी, और आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो चैट में नंबर डाला है, आप मैसेज कीजिए, आपको ऐड किया जाएगा। और सेशन यहीं पर एंड करते हैं। कल सुबह को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति, शुभ रात्रि।